Hello students, I am Dr. Lalita from Hari Science and Maths Academy. As we are discussing the topic atomic structure and transformation of matter. Already two lectures are covered on the atomic structure. Yesterday I gave you two queries regarding to find out the number of neutrons in the element X having atomic number 15 and mass number 31. In this case, number of neutrons, in this case mass number is 31, and atomic number is 15. Atomic number is 15. So the number of neutrons in this case comes out to be number of neutrons is 31 minus 15, that is equal to 16, right? In case of krypton, the mass number is given as 39, mass number is equal to 39, and atomic number is 19. So the number of neutrons in this case comes out to be 39 minus 19 is equal to 20. These are the two queries which are given by me in yesterday's lecture. This is the question number 1, and in question number 2 I gave you find out the electronic configuration and the geometrical representation of the element. The element given are fluorine having atomic number 9, sodium having atomic number 11, chlorine having atomic number 17, and carbon having atomic number 6. To find out the electronic configuration, we have to first find out how many shells are used, and in each cell maximum number of electrons that can be accommodated. For the maximum number of electrons in a shell is 2n square. For shell number 1, that is K, put n is equal to 1. Here it comes out to be 2. For shell L, the shell number is 2. Put here maximum electrons that can be accommodated in L shell is 8. Next is M shell, 2, max n is equal to 3. 3 ka square means 3 multiplied by 3 is 9. Multiply by 2, 18. Maximum electrons that can be accommodated in M shell is 18, and so on, like N, O, P. You can find out, right? For fluorine, as it is having the atomic number 9, so the electronic configuration for the fluorine comes out to be its electronic configuration is, first shell can accommodate maximum 2 electrons. After filling first shell, 9 minus 2 is 7 electrons are left. In the second shell, the maximum electrons that can be accommodated are 8, but here 7 electrons are left. So its fluorine electronic configuration is 2 and 7, right? But fluorine is having the mass number is equal to 19. As I give you the mass number also, its mass number A is equal to 19. If we draw the geometrical representation, then first we draw nucleus, 9 protons, number of neutrons is 19 minus 9, that is 10 neutrons. K shell can accommodate 2 electrons. So 1 and here 1, 2.
L shell can accommodate maximum 8 electrons, but in case of fluorine only 7 electrons are left. तो 7 electrons जो हैं वो present होंगे L shell के अंदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and this is 7. Right? This is the electronic geometrical representation for the fluorine, and this is the electronic configuration for the fluorine. Now if we talk about the sodium, its electronic configuration. For the sodium, electronic configuration is 2. Second, L shell can accommodate 8 electrons. 8. The total electrons in these two shells are 10, but atomic number is 11. So the one electron that is left goes to the next shell, that is M shell. Right? If we draw it, proton, 2 in the first, 8 in the second shell, 8 electron in the second shell, and draw one more shell, and it is having one more electron. For the number of neutrons to write, we have to, I give you the mass number, that is mass number of this is 23. So the number of neutrons that comes out to be 23 minus 11, that is 12 neutrons. Similarly, you can find out rest to chlorine and carbon by yourself. Now the next topic, very first topic which I explained today, is the derivation of the formula. What is the formula? First I tell you, formula is basically formula represents a molecule of an element or compound, and it is a combination of the symbols of the constituent elements along with the number of atoms of the element present in that. Means formula like NaCl. NaCl is basically, NaCl क्या है? एक सोडियम टेबल सॉल्ट जो हमारे घर में डेली यूज होता है. साइंटिफिक नेम है इसका सोडियम क्लोराइड. Sodium chloride, as I told you that there is two things for yesterday lecture I cover. One is positive valency, then negative valency, then we cover the topic ion, and then we cover the topic radical. Right? A formula, what we talk about today is formula. Formula of a compound is basically consists of a combination of elements जिसमें क्या है, पॉजिटिव वैलेंसी आयन भी है, नेगेटिव वैलेंसी आयन भी हो सकता है, और रेडिकल भी हो सकता है. रेडिकल का कल मैंने बताया था कि वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. इफ फॉर्मूला के अंदर हमारे पास आयन प्रेजेंट है, एग्जाम्पल मैं लेती हूँ. कल मैंने लिया था एक एग्जाम्पल बताया था सोडियम. सोडियम इज हैविंग अ मोनोवैलेंट एटम and it is having the positive valency. It gives one electron from an atom and it creates a positive ion, that is Na positive. Similarly, I took one more example of the ion, that is chlorine, having negative valency. Right? तो क्लोरीन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. अब यहाँ पर क्या है कि ये तो मेरे पास पॉजिटिव है और ये इसके पास वैलेंसी जो है वो नेगेटिव है. फॉर्मूला जो है वो फॉर्म होता है जब एक पॉजिटिव वैलेंसी जो है वो नेगेटिव वैलेंसी के साथ केमिकली कंबाइंड होती है. इन दिस पर्टिकुलर केस बोथ आर हैविंग अ मोनोवैलेंट. ये भी मोनोवैलेंट है और ये भी मोनोवैलेंट है. ठीक है, तो केमिकली कंबाइंड होकर के दे फॉर्म अ कंपाउंड, दैट इज NaCl, विच वी नोन एज टेबल सॉल्ट.
जिसको टेबल सॉल्ट कहा जाता है, और केमिकली इट इज नेम्ड एज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला, ये चीज जो है दैट इज अ फॉर्मूला। वो क्या है? एक फॉर्मूला है। अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ या एलिमेंट जो फॉर्म हुआ, कंपाउंड जो फॉर्म होता है दैट इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मीन्स जितने उसके अंदर पॉजिटिव आयंस होंगे उतने ही नेगेटिव आयंस भी होने चाहिए। एग्जाम्पल मैं लेती हूं एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का। ठीक है, एल्यूमिनियम जो है दैट इज हैविंग ट्राइवेलेंट। एग्जाम्पल लिया एक एल्यूमिनियम क्लोराइड का। अब इसमें एल्यूमिनियम का सिंबल के फॉर्मूले के अंदर हम एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल से, राइट। एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है? Al। क्लोराइड जो है वो डिराइव कहां से हुआ? मैंने कल आयन का नेम बताया था, क्लोराइड आयन है। और ये नेम का किसका है? बेसिकली क्लोरीन का, जब वो आयन फॉर्म में आता है। तो क्लोरीन का सिंबल क्या होता है? Cl। अब एल्यूमिनियम जो है दैट इज ट्राइवेलेंट। ट्राइवेलेंट है तो इसकी वैलेंसी जो होती है वो पॉजिटिव होती है, Al3 पॉजिटिव। ठीक है। और क्लोरीन जो है दैट इज मोनोवेलेंट, दैट इज Cl। तो उस पर्टिकुलर केस में फॉर्मूला जो है वो कैसे डिराइव होता है? Al के पास वैकेंसी है 3 पॉजिटिव, Cl के पास वैलेंसी है 1 नेगेटिव। तो उस केस में क्या करते हैं? इनकी वैलेंसीज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखते वक्त सबसे पहले लिखा जाता है पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन किसका है? Al, एल्यूमिनियम का है, तो यहाँ लिखेंगे हम Al। उसके बाद लिखा जाता है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन जो है वो क्या है? Cl का है। Al के साथ मल्टीप्लीकेशन में 1 था, तो यहाँ 1 लिखो या ना लिखो दैट डजेंट मैटर, क्योंकि Al लिखा है तो इट मीन्स दैट इज हैविंग 1 आयन। Cl के साथ यहाँ पर क्या आएगा? 3 आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर फॉर्मूला एल्यूमिनियम क्लोराइड का जो बनता है दैट इज AlCl3। दिस इज हाउ वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। ठीक है, उनकी वैलेंसीज को आपस में हम क्या करते हैं? क्रिस क्रॉस पैटर्न में मल्टीप्लाई करते हैं। देन वी गॉट द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड। हाउ वी गेट? अब इस फॉर्मूले में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा? एल्यूमिनियम के पास 3 पॉजिटिव आयंस थे। ठीक है, क्लोरीन के पास, इसके हिसाब से क्लोरीन जो था वो क्या था? मोनोवेलेंट था। क्लोरीन के 3 एटम्स जो हैं वो एल्यूमिनियम का एक एटम के साथ, इस फॉर्मूले में क्या है? एक एल्यूमिनियम का 1 एल्यूमिनियम आयन इज देयर। ठीक है, और 3 क्लोरीन। तो हो गया इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। एल्यूमिनियम के पास वैकेंसी थी 3 पॉजिटिव की, क्लोरीन के 3 हैं तो उसके पास भी टोटल क्या हो गया? 3 नेगेटिव। तो ये फॉर्मूले में 3 पॉजिटिव एंड 3 नेगेटिव, इलेक्ट्रिकली इट इज न्यूट्रल, इट इज नॉट हैविंग एनी चार्ज। Now, on the basis of this, next topic we will discussing is physical change and chemical change. अभी तक तुमने फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में पढ़ा था। फिजिकल चेंज जो होते हैं दैट आर रिवर्सिबल, ठीक है, ये पढ़ा था। केमिकल चेंजेस जो होते हैं दैट आर नॉन रिवर्सिबल। हाउ इज दैट पॉसिबल? फिजिकल चेंज जो होता है वो, उसका मतलब है कि एलिमेंट के अंदर, कंपाउंड के अंदर या किसी मैटर के अंदर जो आया है चेंज दैट इज फिजिकल। आइदर उसकी स्टेट चेंज होती है, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? मेरे पास फिजिकल चेंज कहलाता है। इन केस ऑफ केमिकल चेंज हमेशा क्या होता है? एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है, और वो नया कंपाउंड कब फॉर्म होगा? जब उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन होगा या कुछ चीज ऐसी। केमिकल चेंज के लिए क्या जरूरी है? उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज जरूरी है। तो फिजिकल चेंज इज बेसिकली, व्हाट इज फिजिकल चेंज? फिजिकल मीन्स जो अपीयरेंस है उसके अंदर कोई चेंज है, ठीक है। केमिकल एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि उसके अंदर केमिकली कुछ चेंज हो।
केमिकल कब होगा, केमिकल चेंज कब अकर होगा? अभी हमने पढ़ा था कि केमिकली जो चेंज होता है, केमिकली चेंज नहीं, केमिकल का मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चेंज हुआ, ठीक है। तो फिजिकल चेंज का वेरी फर्स्ट थिंग इज कि मॉलिक्यूलर कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर composition of the matter, composition of the matter does not change. This is the first difference between physical change, ठीक है। इसमें क्या होता है, केमिकल चेंज के अंदर मॉलिक्यूलर केमिकल रिएक्शन कब होगी, जब उसके एटम्स के अंदर कोई क्या होगा, रिएक्शन होगा, या वो एटम्स जो है वो केमिकली कंबाइंड होंगे। तो एटम्स जब केमिकली कंबाइंड होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पर केमिकल चेंज का मतलब है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन चेंजेस, ठीक है। सेकेंड इज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। इसका सेकेंड पॉइंट है न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। थर्ड इज this change is temporary. Temporary means it is reversible change, reversible, this change is permanent, this change is permanent और irreversible। अब एग्जाम्पल लेते हैं, फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है मेल्टिंग ऑफ वैक्स। यहाँ है, उस वैक्स से ही हम बनाते हैं कैंडल, दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। फर्स्ट फिजिकल चेंज के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्वॉल्व करता है कि उसके कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज हुआ है। वो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो फिजिकल होंगी, दैट इज विजिबल टू अस, जो क्या है, विजिबल है। जैसे कि उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी स्टेट चेंज हो जाए, ठीक है, उसका साइज चेंज हो जाए, उसकी शेप चेंज हो जाए, दैट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट वी कैन सी। तो वो चेंजेस जो होते हैं दैट आर कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। जो चेंजेस इस तरीके की प्रॉपर्टीज को शो नहीं करते, दैट चेंजेस जिसके अंदर केमिकली चेंज होता है, कुछ एटम्स के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस हुए हैं, दैट चेंजेस आर नोन एज केमिकल चेंजेस। इसीलिए फिजिकल चेंज के अंदर कोई मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के अंदर चेंज नहीं आता, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज नहीं आता, इसके अंदर वो चेंज आता है मॉलिक्यूलर कंपोजिशन के अंदर। यहाँ पर कोई नया सब्सटेंस जो है वो फॉर्म नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स को जब हम मेल्ट करते हैं तो वो क्या आएगी, वैक्स क्या है मेरे पास जनरली सॉलिड फॉर्म में है, जब उसको मैंने मेल्ट किया तो वो किस फॉर्म में होगी, उसमें फिजिकल चेंज क्या है कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चली गई, ठीक है, दैट इज द फिजिकल चेंज दैट वी कैन सी। अब यहाँ पर नया सब्सटेंस जो है वो क्या होगा, फॉर्म होगा। एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है उससे क्या होता है कि वो जो वैक्स होती है वो हमारे पास नहीं रहती, वो हमारे पास क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है सारी की सारी, टू गिव अस लाइट एंड हीट।
लाइट और हीट देने के लिए वो कैंडल की जो वैक्स है वो क्या हो गई, हमारे पास जल पूरी की पूरी बर्न हो गई। दैट इज बर्निंग ऑफ कैंडल इज अ केमिकल चेंज। नाउ अब मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो था उसमें क्या हुआ, वो चेंज क्या था, टेम्परेरी था, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। वापस उसका आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दोगे तो वो क्या हो जाएगी, दोबारा से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए दिस चेंज इज टेम्परेरी और रिवर्सिबल। उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, मतलब वापस जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसके अंदर हम उसको ला सकते हैं। दिस चेंज इज परमानेंट। ये चेंज क्या है, परमानेंट है और रिवर्सिबल है। मींस अगर मैंने एक कैंडल लिया बड़ा, उसको मैंने बर्न कर दिया, तो वो पूरी बर्न करने के बाद क्या उसको वापस उस कैंडल को जो लेफ्ट आउट वैक्स रह गया उसको मैं कैंडल फॉर्म में बना सकती हूँ, उसी साइज का नहीं बना सकती। तो दैट इज इरिवर्सिबल चेंज, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये डिफरेंस है फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर। लेट मी गिव यू और वन मोर एग्जाम्पल। फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है, वन इज ग्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे पास ग्लो कर रहा है वो क्या है, फिजिकल चेंज है। कैसे, जब बल्ब को ऑन किया तो क्या करता है, वो लाइट अप कर देता है एरिया को, ठीक है। और इधर हम देखें केमिकल चेंज में, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड्स का जर्मिनेशन, कि सीड्स जो हैं जब उसको जर्मिनेट करते हैं तो वो क्या होता है, ओरिजिनली वो सीड था, जब उसमें से प्लांट और सीडलिंग वगैरह निकलने लग गया तो क्या वापस आप उसको सीड में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते। दैट इज अ केमिकल चेंज। वो क्या है, केमिकल चेंज है। दैट इज all about physical and chemical change. Now the next topic is type of chemical reactions. There are 4 types of chemical reactions in your syllabus. What is a chemical reaction and how we represent a chemical reaction? एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। केमिकल रिएक्शन के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट, एक होता है प्रोडक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एलिमेंट अंडरगो है किसी केमिकल चेंज के, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट देन प्रोडक्ट। केमिकल रिएक्शन के लिए इन 2 चीजों का होना बहुत जरूरी है। दीज आर नेसेसरी। अब रिएक्टेंट क्या है, वो एलिमेंट जो अंडर को है किसी केमिकल चेंज के, दैट इज नोन एज रिएक्टेंट। उससे जो फाइनल चीज बन के आएगी, जो कंपाउंड बन के आएगा, दैट इज नोन एज प्रोडक्ट। अब केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है वो ऑलवेज लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। दैट अंडर को है केमिकल चेंज, तो उसको केमिकल चेंज में गया है तो इसलिए उसको हम शो करते हैं एक एरो से, ठीक है। रिएक्टेंट से क्या बना, प्रोडक्ट बना। अब ये रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट जो है वो कितने होने चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा होने चाहिए। दीज 2 मे बी एलिमेंट, रिएक्टेंट मे बी एलिमेंट, may be compound, may be some radical, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब एग्जाम्पल इज, बट होंगे 2 या 2 से ज्यादा। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने पहले भी पढ़ा था, दैट इज हाइड्रोजन, ठीक है, प्लस क्लोरीन। ये हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल, 2 अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं। प्लस साइन इसलिए इंडिकेट, प्लस साइन जो है वो ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्टेंट्स है। इन दोनों का एडिशन जो है वो क्या करेगा, एक नया सब्सटेंट, अंडर को एक केमिकल चेंज, इसलिए एक एरो लगाया, और यहां पर एक नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करेगा, दैट इज HCl।
अब इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसके भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं, यहां मैंने लगा दिया 2। ये था हाइड्रोजन, ये था क्लोरीन, और यहां मेरे पास ये बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड वगैरह बेस वगैरह क्या होता है वो लेटर ऑन वी विल डिस्कस, बट ये जो है ये फॉर्म करता है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब मैंने क्या डिस्कस किया, रिएक्टेंट, फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। केमिकल रिएक्शन के लिए 2 चीजें जो हैं वो बहुत मस्ट हैं, नेसेसरी नहीं, मस्ट कह लो, ये जरूरी है, ये चीजें होंगी ही होंगी एक केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स राइज टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी लिख सकते हो, बट इसको क्या है लिखने में हमें टाइम ज्यादा लगता है, इस वजह से हम ज्यादातर क्या करते हैं सिंबल्स को प्रेफर किया जाता है साइंटिफिकली भी। तो यहाँ पर इसलिए लिखा ये है केमिकल रिएक्शन जो शो कर रहा है, ठीक है। अब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय H2, हाइड्रोजन का सिंगल एटम एग्जिस्ट नहीं करता। क्लोरीन जो है दैट इज ऑल्सो Cl2, उसको भी Cl2 से गिव्स राइज टू HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ 2 लिखा है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, इसलिए यहाँ पर आया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रिएक्टेंट्स जो होते हैं दैट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इफ देयर आर हैविंग more than 2 or 3 electrons, reactants elements are there in the reaction, then they are represented with the plus sign। उसके बीच में क्या करते हैं हम उसको प्लस साइन से, कि ये 2 एलिमेंट्स जो हैं वो किस में जा रहे हैं, अंडरगो जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन के, इसलिए यहाँ बीच में प्लस साइन लगाया। एरो इंडिकेट्स करता है कि केमिकल रिएक्शन अकर हुआ, आइदर दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इलेक्ट्रॉन bypassing the electricity, or in the presence of heat, that we will discuss in the later on classes, and gives rise to the product, what product is formed. Up on the basis of this there are 4 types of chemical reactions that are in your syllabus. First one is chemical combination. First reaction is type of chemical reaction is chemical combination. Types of chemical reaction. First one is chemical combination. Chemical combination means some A element is there, reactant is there, and another B reactant is there, and give rise to the product AB. ठीक है, दोनों इकट्ठे कंबाइन हो गए, और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, दोनों केमिकली कंबाइन हो गए और उन्होंने एक प्रोडक्ट दे दिया। एग्जाम्पल जो भी हमने डिस्कस किया था दैट इज H2 प्लस Cl2 गिविंग राइज टू 2HCl। ये है केमिकल कॉम्बिनेशन का रिएक्शन। सेकेंड है केमिकल डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकअप होना। डीकम्पोजिशन का अगर हम इंग्लिश मीनिंग भी देखें तो क्या होता है, ब्रेकअप, ब्रेक होना, ठीक है। तो उस केस में लाइक मेरे पास प्रोडक्ट रिएक्टेंट था AB, and in the presence of light or heat or by passing the electricity it is break into A plus B, that is chemical decomposition। वो क्या होता है, chemical decomposition होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर का ही लेते हैं, H2O। H2O is the symbol of water. On passing electricity it will be break into H2 plus O2, ठीक है। This is not a balanced equation as the number of
एलिमेंट्स द नंबर ऑफ वैलेंसीज आर नॉट इक्वल इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो वो हमारी क्या है, इसके अंदर बराबर नहीं है, एटम्स जो है वो बराबर नहीं है। एज हियर जहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, यहाँ ऑक्सीजन का एक ही एटम है। ठीक है, वो हम बाद में सीखेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। बट अब ये जिसकी प्रेजेंस में हुआ है, आइदर इट इज इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट और लाइट, कुछ भी हो सकता है, वो चीजें यहाँ लिखी जाती हैं कि किसकी प्रेजेंस में ये अकर हुआ है। चाहे उसको आप यहाँ नीचे एरो के नीचे लिखो या एरो के ऊपर लिखो। H2O जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास करने से ब्रेकअप होता है H2 प्लस O2 के अंदर। सो H2O के जो एलिमेंट्स, कंपाउंड के जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या हो गए, डीकम्पोज यानी ब्रेकअप हो गए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के अंदर। इसीलिए इस टाइप ऑफ रिएक्शंस को क्या कहा जाता है, केमिकल डीकम्पोजिशन कहा जाता है। कुछ रिएक्शंस केमिकल डीकम्पोजिशन में ऐसी भी होती हैं जो लाइट की प्रेजेंस में होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी भी होती हैं जो हीट की प्रेजेंस में होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होती हैं। जैसे जैसे बाद आप रिएक्शंस पढ़ते जाएंगे, हर एक का एग्जाम्पल आपके सामने आता जाएगा। थर्ड इज केमिकल डिस्प्लेसमेंट। थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, इंग्लिश वर्ड देखें हम तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, किसी चीज को हटाकर उसकी जगह खुद ले लेना, यही होता है डिस्प्लेसमेंट का मतलब। ठीक है, एक एलिमेंट है X, दूसरा कोई कंपाउंड है YZ। ठीक है, दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन अकर होता है एंड इट गिव राइज टू द प्रोडक्ट बनता है मेरे पास XZ प्लस Y। मीन्स X से Y को हटा करके उसकी जगह जो है वो ले ली। बट इन दिस पर्टिकुलर केस X is more reactive। वो कब ले सकता है, जब X के पास ज्यादा पावर होगी। ज्यादा पावर इन टर्म्स ऑफ अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री, तो दैट इज मोर रिएक्टिव, वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Y। X is more reactive than Y। ठीक है, अब बट इफ, ये तो केस है X जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है Y से, but if case X is less reactive, X is less reactive than Y, तो क्या होगा, तो X प्लस YZ का जब रिएक्शन होगा तो वहां पर क्या होगा, कुछ नहीं फॉर्म होगा, कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। तो उस पर्टिकुलर केस में नो रिएक्शन विल अकर। ठीक है, एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग्जाम्पल इज Zn। Zn रिप्रेजेंट्स द जिंक प्लस FeSO4, राइट। FeSO4 इज फेरस सल्फेट तो ये फॉर्म होता है मेरे पास ZnSO4 प्लस Fe। Fe is the symbol of iron and ZnSO4 is zinc sulfate। इसका कलर जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें जिंक जो था वो मोर रिएक्टिव था एज कंपेयर टू आयरन, दैट इज Fe। इसलिए जिंक ने जो आयरन के एटम्स थे उसको रिप्लेस किया और सॉलिड कंपाउंड जो फॉर्म किया दैट इज ZnSO4। और फेरस आयरन जो था वो क्या हो गया, उस सॉल्यूशन के अंदर, ये एक लिक्विड फॉर्म में है,
जिंक के हमने क्या किया, उसके अंदर कुछ पीसेस डाले थे, कुछ पीसेस डाले तो वो ग्रीन, इस कलर को, ग्रीन कलर को उसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, और सॉल्यूशन जो बन गया मेरा, अब वो बन गया जिंक सल्फेट का। और आयरन के जो वो थे एलिमेंट्स के, एलिमेंट्स जो कंपाउंड थे, जो पीसेस थे, वो हमारे पास क्या हो गए, नीचे डिपॉजिट हो गए। दैट इज द रिएक्शन, बट इन दिस पर्टिकुलर केस Zn इज मोर रिएक्टिव देन Fe। Zn जो है वो क्या है, मोर रिएक्टिव है आयरन से, इसलिए ये रिएक्शन अकर हुआ। इफ इन केस अगर ऐसा होता कि जिंक जो है वो कम रिएक्टिव होता फेरस सॉल्यूशन से, फेरस सल्फेट से या आयरन से, तो उस पर्टिकुलर केस में ये चीज होती, कोई सॉल्यूशन जो है, कोई रिएक्शन जो है वो अकर ही नहीं होती। इसकी टेबल मैं एक आपको बना के अभी दे दूंगी कि कौन सा रिएक्शन जो है, कौन सा एलिमेंट, मेटल रिएक्टिविटी जो सीरीज है वो क्या है। नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन इज डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिस्प्लेसमेंट यू कैन से, और डबल डिकम्पोजिशन। दो कंपाउंड से ए बी प्लस एक्स वाई, तो क्या होगा, मेरे पास डबल डिकम्पोजिशन का मतलब है इसका एक एलिमेंट इसके साथ फॉर्म हो गया। एज कंपाउंड में, कंपाउंड नेम जब भी लिखा जाता है तो फर्स्ट वन जो नाम लिखा गया दैट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव आयन एंड सेकंड वन इज नेगेटिव आयन और नेगेटिव वैलेंसी आयन इज देयर। Similarly, in case of XY, X is the positive valency ion, Y is the negative valency ion. For a compound to be electrically neutral, the number of valencies are same. इसलिए यहाँ रिएक्शन होगा A Y फॉर्म, प्रोडक्ट जो फॉर्म होंगे वो क्या होंगे, A और Y. As A is positive and Y is negative, so it becomes electrically neutral. Similarly, X is positive and B is negative, so नेक्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इज एक्स बी। इसका एग्जाम्पल एक मैं लेती हूं, एग्जाम्पल इज KNO3 प्लस FeSO4 गिविंग राइज टू K2SO4 प्लस FeNO3 ट्वाइस। ठीक है, या एक और एग्जांपल लेते हैं, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 गिविंग राइज टू Na सोडियम नाइट्रेट NaNO3 प्लस AgCl। अब इसके आगे मैंने क्या लगाया, एक एरो का निशान लगा। दिस एरो इंडिकेट्स दैट इज इट इज ए प्रेसिपिटेट। Precipitate. What is precipitate? देखो, रिएक्शन जब होती है तो किसी कंटेनर के अंदर या किसी ट्यूब के अंदर या ग्लास कंटेनर के अंदर की जाती है, ग्लास टम्बलर के अंदर की जाती है, तो उसके अंदर जो सॉलिड फॉर्म में नीचे रिएक्शन के बाद अगर उस रिएक्शन के अंदर कुछ सॉलिड फॉर्म में नीचे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। उसको क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट इज बेसिकली समथिंग दैट इज सॉलिड इन नेचर and deposited at the bottom of the test tube। टेस्ट ट्यूब क्या है,
एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लाइक दिस, ठीक है। यहां पर मैंने जब ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज बेसिकली द टेस्ट ट्यूब, लैब में देखा भी होगा, मैम ने दिखाया भी होगा। जब यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में कुछ डिपॉजिट हो जाए, जो हमारे पास लेफ्ट आउट एटम्स हैं प्रोडक्ट फॉर्म होने के बाद, वो सॉलिड होता है नेचर के अंदर और टेस्ट ट्यूब में नीचे डिपॉजिट हो जाता है, दैट इज नोन एज प्रेसिपिटेट। उसको क्या कहा जाता है? प्रेसिपिटेट। जो भी प्रेसिपिटेट होता है उसको हम एक डाउन एरो से मार्क करके शो करते हैं। नाउ फॉर द केमिकल डिस्प्लेसमेंट, कि केमिकल डिस्प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा, उसके लिए एक मेटल रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें शो किया जाता है कौन सा एलिमेंट जो है वो हमारे पास ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव है। तो वो मैं यहां लिख रही हूं, दैट इज मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। First one is potassium having symbol K, then sodium Na, then calcium Ca, then magnesium Mg, then aluminium Al, then zinc, then iron, then nickel, zinc is Zn, iron is Fe, nickel is Ni. After that tin, Sn, lead, Pb, then hydrogen, that is H, then copper Cu. After that it is mercury, that is Hg, then silver, that is Ag, then gold, it is Au, and then platinum, it is Pt. अब रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर दिस इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट एंड दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। ये सीरीज है, इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अकर होती है केमिकल डिस्प्लेसमेंट और केमिकल डिकम्पोजिशन में रिएक्शंस। जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है दैट कैन बी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव एलिमेंट। तो ये केसेस हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। व्हाट वी डिस्कस इज केमिकल रिएक्शंस, केमिकल फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। थैंक यू। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू।